Hello, good evening, everyone. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so in today's current affairs, I will again be discussing the Hindu newspaper. Some very good articles I have selected from the Hindu newspaper. Okay, one article is related to Citizenship Amendment Act. Okay, then after Citizenship Amendment Act, then there is also some article on right to health. Okay, after right to health, there is an article on transport crisis, especially in relation to two aspects. One is the railway crisis and another one is the airline crisis, particularly the Indigo airline crisis. Okay, then for changing the panel to select election commission, there has been one opposition has basically given some recommendations in the parliament in their parliamentary speeches that we must change the panel for choosing the election commissioners and chief election commissioner. And then some news is there related to Donald Trump, additional trumps for the rice exporters. Okay, and finally there is one news also, the motion which has been introduced for impeachment of the Chief Justice of Madras High Court, Madurai bench. Okay, Justice G.R. Swami. Okay, then there is also some science and science related newspaper that when we enter a very bright room, okay, and when we from a very bright room when we go to the dark places, why is it difficulty to see things over there? Okay, so these are the articles which I am going to discuss today. So starting with the first article. Okay, once again I'm telling you, 10th of December 2025, some great news. Okay, the first news is related to Citizenship Amendment Act, which was passed in 2019. Okay, the act itself says that citizenship will be granted to people, persecuted minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. First of all, you must understand few things about this Citizenship Amendment Act. Okay, the act itself was passed in 2019. Okay, to give citizenship to persecuted minorities. Okay, persecuted minorities from which places? From Pakistan, from Bangladesh and from Afghanistan. Okay, if you know the demographic composition of these countries, majority of the people in these countries are from the following the Muslim religion. That's why the other communities are called as minorities, like Hindus, Sikhs, Christians, Jains, Parsis. Okay, they are minorities. Get the point? So these minorities were supposed to be given citizenship. Okay, the cutoff date is if they are migrated before 31st of December 2014, they will be provided citizenship. The grounds of providing citizenship will be two. One is through naturalization or through registration. You have read in basic polity that modes of acquisition of citizenship. There are four modes of acquisition of citizenship, rather five. Number one, by birth. Number two, by descent. Number three, by naturalization. Number four, by registration. And number five, by acquisition of a particular territory. So these are the two ways through which the citizenship is to be given. But 2019, the act was passed. 2025, nobody has been conferred citizenship so far. Okay, now when the special intensive revision is going on, when the special intensive revision of voters roll is going on, they are not able to find their names in voters list because they are at the first place not very citizens of the country. ठीक है, अब citizens नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम कैसे होगा? तो अब they are fearing that they are rendered completely stateless. अब वो stateless है तो इसके लिए उनको सिटीजनशिप पहले प्रूव करना पड़ेगा और सिटीजनशिप अभी तक इसमें से कहीं मिली नहीं है. ठीक है, अ प्ली वाज पेटिशन वाज फाइल्ड बाय वन एनजीओ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से, ठीक है, अब उनको आज की डेट में हम इलीगल माइग्रेंट्स बता रहे हैं, जबकि हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको लीगल माइग्रेंट्स मानना था अगर वो 2014 से पहले 31 दिसंबर से पहले आए हैं. ठीक है, और ये कहा गया कि अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई, तो अब वो कैसे प्रूव करेंगे, इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम कैसे दिखाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन जब फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जो सच में प्रताड़ित हो, जो सच में परसिक्यूटेड हो, ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर. और परसिक्यूशन को प्रूव करने के लिए देयर विल बी प्रॉपरली डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज सेटअप. वो चेक करेंगे क्या सच में ये लोग प्रताड़ित है और तब जाके उसके ऊपर कोई डिसीजन देंगे, तब जाके उसके ऊपर कोई फैसला होगा, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन होगा एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द डिबेट. आई हैव टोल्ड यू मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द आर्टिकल क्या क्या है इसमें, और इसको एक बार पढ़ेंगे आप, आपको पूरी तरह से आर्टिकल समझ में आएगा. ठीक हो गया? ठीक है,
दूसरी चीज जो डिस्कस है वो है राइट टू हेल्थ। ठीक है, यहां पे आपको दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है। पहला है 10th ऑफ दिसंबर, 10th दिसंबर, जिसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे। ओके, दूसरा है 12th ऑफ दिसंबर, 12th ऑफ दिसंबर, और इस दिन को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इसको डिक्लेयर किया है, ह्यूमन राइट्स डे। अब आज है 10th ऑफ दिसंबर, आज से लेके 12 दिसंबर तक दिल्ली के अंदर नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स इज बीइंग कन्वीन्ड। ओके, नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स, नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स। इसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जुड़े हैं, एटलीस्ट मोर देन 400 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगले पेज पे मैं इसका आर्टिकल की डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें इनको डिस्कस क्या करना है, मेजर हेल्थ कंसर्न्स, मेजर कंसर्न्स in health sector. This is the topic which they are going to discuss in the convention which is being organized in Delhi. Okay, in health sector what are the major issues prevalent? ठीक है, अब हेल्थ सेक्टर में मेजर इश्यूज जो प्रेवलेंट है ये मेनली क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि अभी हमको कोविड ने एक बहुत बड़ा लेसन ये दिया था कि हमारी कंट्री में हेल्थ रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ राइट है नहीं। ठीक है, हालांकि हमारा जो जन स्वास्थ्य अभियान है, ठीक है, मोर देन 20 ईयर्स इस अभियान को हो गए, अब जन स्वास्थ्य अभियान, ठीक है, JSA। इसके बावजूद भी जन स्वास्थ्य अभियान के 20 ईयर्स से ज्यादा भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो हेल्थ में इश्यूज है वो अभी भी प्रेजेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन में है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर। द मेजर इशू विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस कन्वेंशन इज प्राइवेटाइजेशन। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में 3-4 चीजें आती हैं। ठीक है, पहले आते हैं मेडिकल कॉलेजेस, देन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल सर्विसेज लाइक द examination, like the services like CT scan and other examinations, they are called medical services। ठीक है, अब इनका प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले तो हो रहा है और काफी हद तक हो भी चुका है। अब ये सही है या नहीं, इसमें क्या क्या रेड स्पॉट्स हैं, किन किन चीजों को जो है मेनली चेक करना है और मेनली किन किन चीजों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर हैज एक्सपेंडेड। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर हैज टेकन प्लेस। अगर आप देखोगे कोविड-19 के टाइम पीरियड में छोटी छोटी मेडिसिन वर्थ 2, 3, 5 रुपीज वॉज सोल्ड एट 500, 600, 1000 रुपीज। इंजेक्शंस वर्थ 50 और 100 रुपीज वर सोल्ड एट 10,000, 30,000। बेड्स which are freely available or which are sold for thousands of rupees were sold for lakhs of rupees to the people. Okay, और commercialization, तो the biggest issue which was there was overcharging। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले ओवरचार्जिंग का इशू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस में जो है आया था। ठीक है, उसके बाद अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर्स। वो क्या है अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर्स? जैसे कोई लेडी है, इफ शी इज एडमिटेड टू एन हॉस्पिटल, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि उसका डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकता था, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर्स क्या करते, प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते, दे फोर्स देम टू गो फॉर क्रॉस सेक्शन, ओके, सी सेक्शन, ओके, सिजेरियन सेक्शन, ओके। देन देयर इज ऑल्सो नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइसिंग, ओके। देन देयर इज ऑल्सो ओपेक प्राइसिंग मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मींस
प्राइसिंग मैकेनिज्म की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर बेड का चार्ज 7,000 या 10,000 पर नाइट है, किसने फिक्स किया, कैसे फिक्स हुआ, और इतना ज्यादा कैसे होगा, इसका मतलब पुअर्स कैन नॉट अफोर्ड। ओके, सो इसलिए हमारे पास क्या है, हमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और उसके अलावा चौथा जो इशू इसमें बताया गया है इस आर्टिकल में, दैट इज वायलेशन ऑफ पेशेंट्स राइट्स, ठीक है, पेशेंट्स राइट्स, जिसमें एक सबसे बड़ा राइट जो वायलेट होता है पेशेंट का, वो है राइट टू डिग्निटी। कभी भी देखना डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ, बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे जो रेस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं पेशेंट्स के साथ, ठीक है। यूजुअली ये पाया जाता है, अभी लेटेस्ट कई सारे एपिसोड्स ऐसे हुए डॉक्टर पेशेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो क्यों, बिकॉज पेशेंट को प्रॉपर डिग्निटी के साथ ट्रीट नहीं किया गया कई कई जगह पे। आई एम नॉट सेइंग ऑल द डॉक्टर्स डू दैट, बट कई कई जगह पे ये चीजें जो है नोटिस में आई है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। इसके लिए अब हमको जरूरत क्या है वो भी इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। What is required, that has also been highlighted, ठीक है। ओवरचार्जिंग तो मतलब रेगुलेशन ऑफ चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट जरूरत है, रेगुलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अननेसेसरी मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए हमको प्रॉपर मेडिकल, मॉरल एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। ओपेक प्राइसिंग मैकेनिज्म के लिए वी नीड अ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, और लास्टली जो वायलेशन ऑफ पेशेंट राइट्स है उसके लिए देयर इज ऑल्सो चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स, इसको प्रॉपरली फॉलो करने की जरूरत है, चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स, इसको प्रॉपरली फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। रेमेडियल मेजर्स क्या क्या जरूरत है, और कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो मैं यहां पे अदर प्रॉब्लम्स के हेडिंग में लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम राइटिंग इट हियर इन अदर प्रॉब्लम्स, इन द हेडिंग अदर प्रॉब्लम्स in India's healthcare sector. What are the other problems? ठीक है, सबसे पहले लो फिस्कल एलोकेशन, बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए लेस देन 2% जो है वो एलोकेटेड है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको बजटरी एलोकेशंस बढ़ाना है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा फैमिलीज के लिए हाई है। एक रिपोर्ट कहती है कि हर फैमिली अपनी ऑन एन एवरेज मेडिसिन पे जो एवरेज फैमिली जो है हाफ से ज्यादा अपनी जो इनकम है, अगर उनके घर में कोई सिक पेशेंट है तो हाफ से ज्यादा इनकम उनके मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो हाई है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस वो ज्यादा है, उनको कैसे कम किया जाए, ठीक है, वो भी इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। अब हेल्थ वर्कर्स के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, यहां पे तीसरी प्रॉब्लम मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इशू ऑफ राइट्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स। कोविड-19 ने बताया था हमें कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है सबसे पहले वो कितने कम है, उसके बाद वो जितने भी हैं उनकी लो सैलरीज, मोर वर्किंग आवर्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस, ये सारे इश्यूज जो हैं वो बताए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर। वंडरफुल आर्टिकल, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन, प्लीज गो थ्रू इट वेरी थॉरोली, ठीक है। उसके बाद और ये बताया गया है कि कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशंस इन वेरियस फॉर्म्स,
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सोशल हायरार्की इज फिक्स्ड है, ठीक है। जेंडर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, दलित्स, आदिवासीज, मुस्लिम्स, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, एलजीबीटीक्यूज, ठीक है। और उसके बाद कई सारे और इश्यूज है हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे, ठीक है। इसलिए हमको एक बहुत ही बड़ी हेल्थ पॉलिसी जो है रिवैम्प करनी पड़ेगी, और हेल्थ पॉलिसी के जितने भी इश्यूज है उनको थॉरोली क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। दिस इज ऑल दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। प्लीज गो थ्रू दिस आर्टिकल वेरी थॉरोली, वंडरफुल आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट। ट्रांसपोर्ट क्राइसिस हमारे कंट्री में जो रिसेंटली हुआ, उसकी जो है मेजर कॉजेज क्या है और क्या है। इसमें इकोनॉमिक्स की दो तीन टर्म्स हैं, ठीक है। एक है नियो लिबरल इकोनॉमिक्स, नियो लिबरल, ये मैं अगले पेज पे लिखूंगा हालांकि, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले नियो लिबरल इकोनॉमिक्स क्या है और नियो लिबरल इकोनॉमिक्स में इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। दूसरा इश्यूज है मोनोप्लीज का, कि मोनोप्लीज जब हो जाती है, ठीक है, तो कितना प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा है सप्लाई शॉक, तीसरा है सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक सरवाइव करने में कितनी दिक्कत होती है जब मोनोप्ली हो, जैसे इंडिगो की मोनोप्ली है, मेजॉरिटी फ्लाइट्स कैंसिल होगी, पूरा हमारा एविएशन सेक्टर जो है इस समय क्राइसिस में है, ठीक है। मोनोप्लीज का शॉक, सप्लाई शॉक्स, ठीक है। और उसके बाद इंडियन रेलवेज, कि अगर रेलवेज की तरह प्राइसेस फिक्स रखें तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे इश्यूज जो है इसमें डिस्कस्ड है, ठीक है। आई विल डिस्कस देम वन बाय वन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग, प्लीज बेयर विद मी। मेरे को एक दो फ्रंट से मैसेजेस आए हैं कि थोड़ा सा स्पीड जो है वो हमारा फास्ट रहता है, लेकिन आज मैं एक्सट्रीमली स्लो जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं, इट इज अबाउट कि हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस स्थिति में है इस समय, ठीक है। इंडिया का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है कि इट हैज ए मेजर स्ट्रेन इन इंडिया। स्ट्रेन मतलब होता है दिक्कत में है इस समय, क्या है इसमें, ये एक मैसिव दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके इंस्टेंसेस मैं आपको बता देता हूं अभी। बिहार रेलवे ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग किस वजह से हुई बिहार में, दो चीजें थी। एक वहां पे एक फेस्टिवल है दैट इज छठ पूजा, और दूसरा इशू जो था दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्शंस, ठीक है। ये हो गई रेलवेज की प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हो गया एयरवेज। रिसेंटली एयरवेज में गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाए कि पायलट्स के जो है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है। जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि पायलट्स के वर्किंग आवर्स को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से एयरवेज में सबसे ज्यादा जो न्यू रेगुलेशंस हुए, न्यू रेगुलेशंस की वजह से अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हुई वो किसको हुई, इंडिगो को। हर दिन 200 300 400 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो कैंसिलेशन है। वो क्यों, इंडिगो नियर मोनोपोली बना चुका है अपनी, मोर देन 80% शेयर जो है इंडिगो का इस समय एविएशन सेक्टर में इंडिया में है, ठीक है। एक इंडिगो की एयरलाइंस की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर जो है इस वक्त डिफिकल्टी में है। तो यहां से क्वेश्चन उठा कि क्या मोनोपोली जो है वो सही है इकोनॉमी के लिए। याद रखना मोनोपोली इज नेवर गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। अगर वो मोनोपोलिस्टिक, वो जो ऑप्शन जिसने मोनोपोली बनाई है जिस फर्म ने, अगर वो फेल हो जाए तो पूरा सेक्टर हिट हो जाता है। इसलिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंडिगो को क्या कहा कि तुम्हारी फ्लाइट्स का जितने भी तुम्हें एलोकेटेड स्लॉट्स है फ्लाइट्स के, उसमें 5% कट किया जाएगा, कि 5% फ्लाइट जो है दूसरे एविएशन जो है एयरलाइंस को, जैसे एयर इंडिया हो गया या फिर इसके अलावा अब एयर एशिया, एयर विस्तारा तो मर्ज हो गया एयर इंडिया के अंदर ही, ठीक है। स्पाइस जेट हो गया, इनको दे देंगे, ठीक है। इससे पता चला कि मोनोप्लीज आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ओके, मोनोप्ली की जगह कौन सी चीजें होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटिटिवनेस, मोनोप्ली वर्सेस कॉम्पिटिटिवनेस। तो कॉम्पिटिटिवनेस में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस में क्या होता है कि आप ओवरचार्जिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन में आपको सरवाइव करना पड़ता है, करना है, उसकी वजह से वेलफेयर भी हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, प्राइस एफिशिएंसी आता है, प्राइस एफिशिएंसी आता है एक, और दूसरा रेजिलियंस आता है कि आप इजीली कम नहीं करते किसी भी शॉक के लिए।
अगर कोई भी शॉक आ जाए। अब इस समय हुआ क्या, जब इंडिगो की मेजॉरिटी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो लोगों को ट्रेवल तो फिर भी करना था। अब उधर से सप्लाई ऑफ टिकट, सप्लाई ऑफ सीट्स, सप्लाई ऑफ एयरलाइंस बिल्कुल खत्म हो गई, ड्रास्टिकली रिड्यूस। ठीक है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों ने ट्रेवल तो करना ही है, डिमांड इज वेरी वेरी हाई। ड्यू टू दिस रिड्यूस सप्लाई एंड हाई डिमांड, there is increase in prices. Hyderabad to Delhi, so many people have to fly by a ticket of over 1 lakh rupees. Delhi to Srinagar or Srinagar to Delhi, people have to fly on a flight of more than 25,000 rupees. ठीक है, तो मोनोपलीज आर नॉट गुड। ये सप्लाई शॉक जब लगता है जब हमारे पास मोनोपली हो। अगर और भी एयरलाइंस होती, बहुत सारी एयरलाइंस, अगर 40% शेयर होता, जैसे मैं आपको बात करूंगा आज से 10 साल पहले का सिनेरियो, इंडिगो के पास सिर्फ 30% शेयर था, जेट एयरवेज के पास शेयर था, गो एयर के पास शेयर था, विस्तारा एयरलाइंस के पास शेयर था, एयर इंडिया के पास अपना स्लॉट्स का शेयर था। तो दैट वाज अ सिचुएशन ऑफ कंपटीशन। तो आप देखोगे उस टाइम पे एयरलाइन थोड़ा सस्ता ट्रेवल होता था। ठीक है, अब इसमें जो बात की गई, अब आपके पास क्या है, अब दूसरा बात आती है रेलवेज की। रेलवेज परफेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, अभी तक ये पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेटेड अगर कोई चीज है तो इसका मतलब गवर्नमेंट वर्क्स ऑन वेलफेयर मोटिव। ठीक है, इस वेलफेयर मोटिव के लिए प्राइसेस जो है वो क्या करेंगे, कम रखेंगे हमेशा। प्राइसेस आर लो, अब बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस सो मेनी पीपल विल प्रेफर टू ट्रेवल by this means, so therefore there is bound to be overcrowding. अब दो ऑप्शन है, या तो रेलवेज को भी प्राइवेटाइज कर दो या फिर आप प्राइसेस जो है वो बढ़ा दो, लेकिन उससे हमारा इशू सॉल्व नहीं होगा, लोग फिर भी ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान रहेंगे। बेटर ये है कि आप इंक्रीज करो, क्या करो, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स जो है रेलवे के जो ट्रैक्स है उनको ले डाउन करो, ज्यादा से ज्यादा कोचेज रेलवेज में एनहांस कर दो ताकि ये ट्रांसपोर्ट का क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस है जो इसमें मेंशन किया है, वो मेंशन किया है किसकी, थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी का हाइपोथेसिस ये है कि इनकम इनइक्वालिटीज को इसके लिए यूज करो। ठीक है, वो कहता है कि टैक्स 1% ऑफ द रिचेस्ट पीपल, जो इंडिया के रिचेस्ट पीपल हैं उनको टैक्स करो थोड़ा हायर रेट पे, उनसे टैक्स हायर रेट पे। जब आप टैक्स करोगे हायर रेट्स पे इंडिया के रिचेस्ट 1% पीपल के लिए, तो इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में दिस इज सफिशिएंट, दिस इज सफिशिएंट to make India a welfare state, ठीक है, थॉमस पिकेटी। ठीक है, ही वाज अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, फ्रेंच और रशियन इकोनॉमिस्ट, लेकिन उसका हाइपोथेसिस ये है कि इनकम इनइक्वालिटीज को जो है थोड़ा सा उसको ऊपर फोकस करो, रिच को जो है थोड़ा सा टैक्स एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, अब अगर आप पुअर से भी टैक्स ले लोगे, ठीक है, तो उनके हाथ में क्या रह जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी, तो वो ग्रोथ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा क्योंकि उससे एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत ही ज्यादा पॉलिसी रिवैम्प करने की जरूरत है सप्लाई शॉक्स को मेंटेन करने के लिए, और गवर्नमेंट का इफेक्टिव रेगुलेशन रहना चाहिए हमेशा हर सेक्टर में। अगर आप फ्रीडम दे दोगे, जैसे नियो लिबरल इकोनॉमी के अंदर होता है। व्हाट इज नियो लिबरल इकोनॉमिक्स? एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम जहां पे स्टेट लीस्ट इंटरफेयर करे और मार्केट को पूरी तरह से फ्री छोड़ दे। मार्केट कंपटीशन पे चलती है, मार्केट प्रॉफिट मोटिव पे चलती है, तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है लो इनकम ग्रुप्स का। ठीक है, इसलिए क्या हमको नियो लिबरल इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है, अब मेनली जो है न्यू लिबरल इकोनॉमी में, हाँ, हम थोड़ा सा सेलेक्टिव लिबरलाइजेशन कर सकते हैं जैसे इंडिया ने किया 1991 ऑनवर्ड्स, लेकिन एक्सट्रीम लिबरलाइजेशन भी डेंजरस प्रूव हो रही है। इसलिए अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी मेजर सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया या एजुकेशन सेक्टर हो गया, आज भी वहां पे गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। ठीक है, तो न्यू लिबरल इकोनॉमी जो विच सेज दैट देयर मस्ट बी कंप्लीट विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए नहीं है। लिबरल इकोनॉमी इज फाइन, लेकिन एक्सट्रीम reduction in government's interference or government's regulation in various sectors of the economy is dangerous for the economy. Get the point?
ठीक है, ये भी एक मुझे बहुत अच्छा वंडरफुल आर्टिकल लगा। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही थारोली ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए इकोनॉमिक्स का जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना काम करे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है वो एक्टिवली रहे, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो भी एक्टिवली चालू रहे। ठीक है, और मोनोप्लीज को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, और अगर मोनोप्लीज का ट्रेंड खत्म नहीं किया गया, इससे पूरी इकोनॉमी जो है एक दिन डेंजर में हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट, ऑपोजिशन सीक्स चेंज इन पैनल टू सेलेक्ट इलेक्शन कमीशन। ओके, 2023 में जो इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का पैनल जो रिकमेंड किया गया था वो है प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम लोकसभा प्लस वन मिनिस्टर nominated by prime minister. This is the panel which chooses election commissioners and the chief election commissioners. Opposition क्या कह रही है कि इसमें पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, वो क्यों आपने हटा दिए? Earlier there was chief justice of India. Opposition कह रही है कि bring it back. Opposition क्या कह रही है कि bring it back. दूसरा, अपोजिशन कह रही है लीडर ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा शुड ऑल्सो बी ऑन द पैनल। सो मेक दिस अ वाइडर बॉडी। ये जो इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो चूज करने का या अपॉइंट करने का पैनल है, इसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड बनाओ जैसे ये पहले था। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की इस समय न्यूट्रल फंक्शनिंग जो है वो क्वेश्चन में है। क्या है? इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रल फंक्शनिंग जो है वो क्वेश्चन में है कि ये न्यूट्रलिटी के साथ फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, हालांकि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है मेनली उसके खिलाफ ही सब लोग क्या है इस समय ज्यादा बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एज वेल एज अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है या नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ठीक है, इस आर्टिकल में एक और चीज बताई गई है कि अपोजिशन क्या कह रही है कि जब वर्ल्ड के मेच्योर डेमोक्रेसीज, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को डिस्कार्ड कर दिया, तो हम इंडिया में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्यों यूज कर रहे हैं? सो अभी दे आर कॉलिंग फॉर रिटर्न ऑफ बैलेट पेपर इन वोटिंग सिस्टम। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमेशा दे आर वल्नरेबल। जैसे बताया कि यूएसए एक इतनी ओल्ड डेमोक्रेसी है, वो भी अभी बैलेट पेपर पे ही है, उन्होंने भी ईवीएम को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, बहुत सारी, जैसे जर्मनी का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि वहां पे भी अभी तक बैलेट पेपर से क्या हो रही है, वोटिंग हो रही है। तो इंडिया में क्यों बैलेट पेपर अभी भी जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता? दिस इज व्हाट अपोजिशन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये सारे जो है क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, दिस वाज अनदर वंडरफुल आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो बताया कि ट्रंप जो है वो ये कह रहा है कि हम और राइस के ऊपर 3% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, जो राइस एक्सपोर्टर है इंडिया से जो राइस एक्सपोर्ट करेगा उनको टैरिफ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम 50% टैरिफ्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों? 25% नॉर्मल टैरिफ्स जो उन्होंने लगाए और 25% पेनल्टी टैरिफ्स फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, अब यहां पे हमको घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि राइस अगर हम देखेंगे तो हमारा राइस का जो एक्सपोर्ट है यूएसए की तरफ, ठीक है, हमारा सिर्फ 3.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएसए की तरफ। यूएस हमारे लिए एक छोटी मार्केट है राइस एक्सपोर्ट्स में, तो लेकिन यूएसए को इससे ज्यादा खतरा है क्योंकि यूएसए इंडिया से जितना इंपोर्ट करता है दैट इज 26.1%
of rice imports. 26.1% of rice imports to USA is from India. मीन्स यूएसए जितना अपना टोटल राइस इंपोर्ट करता है उसका 26% इंडिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया जितना एक्सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, यूएसए की तरफ जो जा रहा है वो सिर्फ 3% है। तो हमारे लिए 3.3% है, तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम ये यूएसए के लिए है। इसलिए यूएसए क्या कह रहा है कि वी विल हैव सपोर्ट फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, अमेरिकन फार्मर्स के लिए। इसीलिए उसने $12 बिलियन का एक पैकेज भी दिया, $12 बिलियन का पैकेज भी दिया अपने फार्मर्स के लिए, डिस्पाइट दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन राइस। तो अगर वो राइस पे एक्स्ट्रा 3% टैरिफ लगाए भी तो उसके लिए वी विल नॉट वरी मच। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताया कि वी शुड वरी अबाउट द ट्रेड डिपेंडेंस अपॉन यूएसए, क्योंकि जब से यूएसए ने इंडिया के ऊपर ट्रंप ने जो 50% टैरिफ्स लगाए उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट भी ऊपर जा रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ हो रहा है, लॉट ऑफ इश्यूज इन द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। गेट द पॉइंट? ओके, सो लास्ट आर्टिकल या अनदर वन, मैंने आपको पहले ही बताया कि जस्टिस जी.आर. स्वामी, मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, उसको क्या कहा गया कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन अभी स्टार्ट किया गया। मैंने आपको पहले बताया इंपीचमेंट मोशन आर्टिकल 124 क्लॉज 4, इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इंपीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। और इस आर्टिकल का एक्सटेंशन टू स्टेट्स बताया गया आर्टिकल 218 में, एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 4 टू हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। लेकिन इंडिया ब्लॉक जो कहता है, अपोजिशन ब्लॉक कहता है कि आर्टिकल 124 के अंडर रेड एंड 217 के अंडर कार्रवाई की जाए इंपीचमेंट की अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। उन्होंने आर्टिकल 217 को क्यों बीच में लाया? क्योंकि आर्टिकल 217 बताता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का क्वालिफिकेशन और जजेस के टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ वर्किंग, क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा। उसमें यह बताया गया कि अगर वो अनसाउंड बॉडी या अनसाउंड माइंड का हो जाए या उसके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर की कार्रवाई हो तो इसलिए उसको इम्पीच किया जा सकता है। पर क्या यहां पे जस्टिस जी.आर. स्वामी के खिलाफ कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर की शिकायत है? उन्होंने कहा हाँ है। ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में केसेस डिसाइड करते हैं। ही डिसाइड्स केसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दिस इज व्हाट इंडिया ब्लॉक सेज। कल मैंने आपको बताया कि इंपीचमेंट प्रोसीजर्स के लिए लोकसभा से 100 मेंबर्स उस पर साइन करने चाहिए, राज्यसभा से 50 मेंबर्स उस पर साइन करना चाहिए, फिर ये मोशन जाएगा स्पीकर के पास, फिर स्पीकर क्या करेगा, इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और कमेटी कौन कौन होगा मेंबर्स, कल मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो देख लेना। और फिर मैंने आपको ये बताया कि फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी और दोनों हाउसेज में, और वोटिंग में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से इंपीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो जो ये जो जज है हाई कोर्ट का, दैट विल स्टैंड रिमूव्ड आफ्टर प्रेसिडेंट इश्यूज अ रिमूवल ऑर्डर। गेट द पॉइंट? लेकिन नो जज हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। और ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये किसकी वजह से आया। दिस वाज बेसिकली कार्तिगाई दीपम फेस्टिवल, ओके, कार्तिगाई दीपम फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, कार्तिगाई दीपम फेस्टिवल, ठीक है, जिसमें देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ लिटिंग अ दीप, okay, on a pillar that is called a deepathun. Deepathun is pillar on which the deep is to be lit, okay. So he has ordered to lit a deep on a pillar near the dargah on the hilltop, okay. So इसलिए उन्होंने कहा कि ये कम्युनल टेंशंस को बढ़ाने के लिए जो है थोड़ा सा इस समय इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, कम्युनल टेंशंस बढ़ाना चाह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बिकॉज इफ यू नो दैट तमिलनाडु इज गोइंग टू बी going through a phase of elections now in the coming days, तो इसलिए
ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है ये इनिशिएट की गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड आउटकम दैट वी विल फॉलो इन द कमिंग डेज, हर दिन न्यूज आएगी तो आई विल फॉलो, ठीक है। कॉट इन द हेडलाइंस एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली जनरल नॉलेज के लिए है, हालांकि हो सकता है पूछा भी जाए कभी प्रीलिम्स में, कोई नोटोरियस किस्म का एग्जामिनर है, वरना आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक लाइट रूम या लाइटर कंडीशन से कहां जाते हैं, डार्क रूम की तरफ, डार्क रूम की तरफ, डार्कनेस और डार्क रूम, जहां लेस लाइट हो, ठीक है, तो वहां हमको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है। बाहर बालकनी में खड़े हो धूप में थोड़ी देर, फिर रूम की तरफ वापस आओ तो देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आंख का कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उस ऑर्गन को कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल आंख का वो पार्ट है जो जैसे जैसे लाइट आती है, तो वो तेज लाइट आती है तो वो श्रिंक करता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर ना हो आंख में और पीछे जाके रेटिना को डैमेज ना करे, ठीक है। इसमें बात की गई है कि हमारी जो है 3 लेयर्स हैं आंख की मेनली, ठीक है। पहली लेयर है स्लेरा एंड कॉर्निया, जो अपर बल्जी पार्ट होता है। दूसरा होता है प्यूपिल, जो इनर कैमरा, जहां पे जिसको आप लेंस भी बोलते हैं, लेंस टाइप होता है, ठीक है। प्यूपिल जो है वो कैमरा अपर्चर की तरह होता है, ठीक है। और लास्ट वन इज रेटिना। रेटिना इज द प्लेस जहां पे जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पीपल की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज द रीजन, पीपल का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जैसे ही ब्राइट लाइट आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट को ये रोक सके और कम लाइट जो है वो अंदर जा सके और रेटिना के ऊपर इमेज बना सके। अगर ज्यादा लाइट जा सके वो हो सकता है रेटिना को डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एक रीजन है इसका। दूसरा ये भी बताया गया है कि जो हमारा रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, दे आर कॉल्ड रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो ब्राइटनेस, कलर्स वगैरह का डिफरेंशिएशन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स जो है ये सेंस करते हैं ब्राइटनेस को, रॉड सेल्स सेंस द ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस को सेंस करने के लिए वो किस चीज से उनको असिस्टेंस मिलती है, दे सेंस ब्राइटनेस थ्रू अ लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, light sensitive through a light sensitive protein जिसका नाम है रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन, ठीक है। जैसे ही ब्राइट लाइट आंखों में एंटर होती है, रोडोप्सिन प्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत क्विकली ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ब्राइट लाइट एंटर होती है, रोडोप्सिन जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जब आप डार्कनेस में आए तो जो ब्राइट लाइट है वो कम हो गई, तो जितना टाइम आपको सही से ऑब्जेक्ट दिखने में लगता है, दैट इज द टाइम टेकन बाय रोडोप्सिन टू गेट रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो व्हेन आईज एडजस्ट टू डार्कनेस द प्रोटीन्स लेवल आर बिल्डिंग बैक अप, प्रोटीन का लेवल जो है वो रीबिल्ड हो रहा है, रीबिल्डिंग ऑफ रोडोप्सिन इज टेकिंग प्लेस, रीबिल्डिंग ऑफ रोडोप्सिन। रॉड सेल्स, कोन सेल्स कहां पाए जाते हैं आंख में, दे आर फाउंड इन रेटिना, ठीक है। काम क्या होता है, ब्राइट कलर और ब्राइटनेस सेंसिटिविटी। रॉड सेल्स जो है वो सेंस करते हैं ब्राइटनेस को विद द हेल्प ऑफ वन प्रोटीन दैट इज रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन जो है इमीडिएटली जैसे ही ब्राइटेस्ट लाइट आती है, जो रोडोप्सिन प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे डार्कनेस में आते हैं तो वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि रोडोप्सिन प्रोटीन इज बिल्डिंग बैक, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्यूपिल एज वेल एज द breakdown and rebuilding of the protein rhodopsin, that is responsible for the differences when we enter from the lighter atmosphere or lighter environment to the darker environment. There is a lag, we cannot see the objects very clearly, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही काफ़ी है, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं थोड़ा सा स्लो जा सकूं आपके लिए, ठीक है। टुमारो आई विल कम बैक अगेन। आई थैंक ऑल ऑफ यू टिल वी मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।